यस फ्रेंड्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। इसी को हम बोलते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग। आप कहोगे सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, बताता हूं मैं। आपने कॉन्स्ट्रेंट के लिए की फैक्टर पढ़ा हुआ था। की फैक्टर में हम लोग क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन पर आवर से अपन कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम निकालते थे। तो वहां जो कंट्रीब्यूशन होता था वो होता था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर उस कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन चेंज हुई है। थोड़ा पढ़ेंगे फिर बताता हूं मैं आपको। इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग 1980s, Gold, Rat and Cox advocate a new approach to production management called OPT. OPT is based on the principle that profit are expanded by increasing the throughput. थ्रूपुट का मतलब है सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल। कहने का मतलब यह है कि आप जो सेल में से जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो बाकी वैल्यू है वो कंपनी का थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कहलाता है। दैट इज, इसके आगे पढ़ेंगे, द रेट एट विच द रॉ मटेरियल टर्न्ड इनटू सेल। जितनी जल्दी रॉ मटेरियल हमारी सेल में कन्वर्ट होगी उतनी ही जल्दी कंपनी को प्रॉफिट होगा। द ओपीटी अप्रोच डिटरमाइन व्हाट प्रिवेंट थ्रूपुट बीइंग हायर बाय डिस्टिंग्विश bottleneck and non bottleneck resources. ओपीटी अप्रोच ने कहा कि अब इस थ्रूपुट का मतलब सेल माइनस मटेरियल कॉस्ट को कौन सी चीज रोक रही है, जो चीज रोक रही है उसको कहा गया बॉटलनेक रिसोर्स। ठीक है। द अप्रोच एडवोकेट दैट बॉटलनेक रिसोर्स शुड बी फुली यूटिलाइज, अंडरलाइन करें, while non-bottleneck resources should not be utilized to 100% of their capacity since it would result in increase of inventory. क्यों? अगर हम नॉन बॉटलनेक रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक खड़ा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो बॉटलनेक रिसोर्स है आप उसको पूरा यूटिलाइज करें। बॉटलनेक जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है। और पढ़े, OPT is based on the principle that profit are expanded by increasing the throughput. ये ऊपर मैंने दोबारा बता दिया, ये 2 बार हो गया है, इसको ये रिपीट हो गया है, इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। The most likely recognized system developed for this purpose is known as throughput accounting. ठीक है, तो ये OPT पे भी अगर शॉर्ट नोट पूछ लेंगे तो बता देंगे। The concept behind the system was first formulated by Goldratt and Cox in USA. Goldratt developed the concept and eventually gave it the name of theory of constant. The theory was picked up and inducted into accounting system in the UK, which is known as throughput accounting. तो ये इसकी हिस्ट्री मिल गई। थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है? थ्रूपुट अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट which relates production and other costs to the throughput, okay, and product cost to use of key resources. It assumes that a manager has given a set of resource available और उसको using these resources मटेरियल जो परचेज किया है must be processed to generate sale revenue. ठीक है। So maximum amount of throughput is required for the financial definition. अब यहां पर पढ़ेंगे concept and aim of theory of constraint. The theory of constraint focus its attention on constraint and bottleneck within the organization which hinder speedy production. The main concept क्या है, is to maximize the rate of manufacturing output. Manufacturing output का मतलब है raw material को sale में convert करना, throughput of the organization. This requires to examine the bottleneck and constraint which are defined as, bottleneck क्या है? Bottleneck is an activity within the organization where the demand for that resource is more than the capacity to supply. Underline करें से, वैसे मैंने कर रखा है, important है। A constraint is a situation factor which makes the achievement of objective throughput more difficult than it would otherwise be. Constraint may take several forms such as lack of skilled employees, lack of customer order, or need to achieve a high level of quality product.
Using above definition, therefore, a bottleneck is always a constant, but a constant need not to be a bottleneck. इस पर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। बॉटलनेक हमेशा कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कांस्टेंट आपका बॉटलनेक हो। कांस्टेंट नॉन बॉटलनेक भी हो सकता है। मतलब अगर 3 कांस्टेंट है और सबसे ज्यादा डिमांड सपोज कर लीजिए एक ही है एबीसी में से, तो एक बॉटलनेक कहलाएगा, बाकी 2 कांस्टेंट कहलाएंगे। नीचे पढ़े। आइडिया बिहाइंड थ्योरी इज दैट रॉ मटेरियल इज द ओनली वेरिएबल कॉस्ट। Labor and fixed cost are considered as fixed cost. Okay. The theory of constant describes method to maximize operating income under bottleneck situation. तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं? कैलकुलेट करें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट निकालें, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालें। ये स्टेप्स हैं। फाइंड द टोटल रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट पर यूनिट, compute its department separately, throughput accounting ratio निकाले, capacity required upon capacity available, the highest among that will be considered as bottleneck ratio. देखिए, so the problem is now converted into many product non limiting factor situation. Follow the process of case 3 only. ये थ्योरी आई है, क्वेश्चंस आए हैं इसके। तो इसमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, ये प्रैक्टिकल्स हैं। तो अब एक मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, उससे आपको क्या है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी आप कह रहे हैं सर बोर हो गया पढ़ पढ़ के मैं। चलिए, तो मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बताता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कांस्टेंट और थ्रूपुट अकाउंटिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम ओल्ड कॉन्सेप्ट लें। की फैक्टर अप्रोच क्या होती है? की फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। फिर हम क्या निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर आवर्स निकालते हैं और कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालते हैं, और फिर हम रैंकिंग करते हैं। कंट्रीब्यूशन उसको हम पहले यूज करते हैं जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम थ्योरी ऑफ कांस्टेंट में करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे थ्रूपुट। ये एक तरह से आपका जो पहले कंट्रीब्यूशन था, अब यहां पर थ्रूपुट वर्ड यूज किया जाएगा। यह सेल माइनस मटेरियल। क्यों? लेबर एंड जो वेरिएबल ओवरहेड है, दैट इज द कन्वर्जन कॉस्ट, एज्यूम की गई है एज फिक्स्ड। तो थ्रूपुट, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट कहती है सर थ्रूपुट इंक्रीज करो, ठीक है, थ्रूपुट आप इंक्रीज करिए। फिर आप निकालते हैं बॉटलनेक एक्टिविटी। बॉटलनेक एक्टिविटी का मतलब है जो हाईएस्ट शॉर्ट हो, जो या जिसका रिक्वायरमेंट अपॉन अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसको हम बॉटलनेक एक्टिविटी कहेंगे। तो तीसरे में हम ऑप्टिमम
प्रोडक्शन मिक्स निकालेंगे किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बॉटलनेक एक्टिविटी। बॉटलनेक एक्टिविटी के बेसिस पर हम निकालेंगे। चलिए, एक ये जो क्वेश्चन है, अब इसको करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। देखिए, अ कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड। ए बी सी है, सेल दे रखी है, सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस मटेरियल दे रखा है, यानी कि थ्रूपुट दे रखा है, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड दे रखे हैं, एस्टिमेटेड डिमांड दे रखी है। It is given that maximum time available is 30 to 100 hours for each machine. You are required to analyze the above information and apply TOC process to remove the constraint. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा समझ लीजिए। देखिए, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ बॉटलनेक रिसोर्स। हमारे हैं प्रोडक्ट ए बी सी। क्वांटिटी की डिमांड कितनी है? 200 200 200। मशीन 1, इसके कितने घंटे लगने हैं? मशीन 1 के देखिए कितने घंटे हैं? 12 18 12 4 2, यानी कि 12 इंटू 200, 4 इंटू 200, 2 इंटू 200, तो टोटल रिक्वायर्ड कितने चाहिए? 3600। ठीक है, अवेलेबल कितने हैं? 3200। मशीन 2 की बात करेंगे हम। मशीन 2 में चाहिए 18 इंटू 200, 6 इंटू 200, 3 इंटू 200, तो कितने हैं? 5400। 3200। मशीन 3 6 इंटू 200, 2 इंटू 200, 1800, 3200। अब हम टीए रेशियो निकालेंगे। टीए रेशियो क्या होगा? 36/3200। तो इसका आएगा 112.5%, इसका आएगा 168.75%, और इसका आएगा, आप खुद देख रहे हैं कि ये मशीन में 3200 आवर्स अवेलेबल है और रिक्वायर्ड है हमारे को 5400। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम अबव मशीन 2 is the bottleneck resource। bottleneck resource है हमारा मशीन 2। ठीक है, अब हम देखेंगे, पहले हमने bottleneck पता करा, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। इसके आगे का काम वही है, सिंपल है। इसके आगे का काम सिंपल है।
लेकिन यहां बॉटलनेक रिसोर्स पता करना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाएंगे तो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, इनका थ्रूपुट कितना है? थ्रूपुट यानी कि सेल माइनस मटेरियल, इसका 24 है, इसका 20 है, इसका 12 है। मशीन आवर्स ऑफ मशीन टू क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये बॉटल नेक है, इसकी वजह से हमारा काम रुका हुआ है। 18, 6, 3। तो थ्रूपुट पर आर 1.33, 3.33 एंड 4। रैंकिंग करेंगे हम तो क्या, सबसे पहले सर सी बनाइए, फिर बी बनाइए और फिर ए बनाइए। इसके बाद क्या करते हैं आप? आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं? यस, अब आपको पता है तीसरा जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। हम यहां पर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट रैंकिंग के हिसाब से लिखेंगे डिमांड तीनों की 200 है, आवर्स पर यूनिट देखेंगे तो ये 3 है, ये 6 है और इसके 18 है। आवर्स रिक्वायर्ड 600, 1200, 3600। आवर्स अवेलेबल 3200। यूज्ड कितने किए हमने? 600। बैलेंस कितने हैं? 2600। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितनी की हमने? 200। यहाँ पर आएंगे 2600, ये 1200, ये 1400। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर अब यहाँ क्वांटिटी मैन्युफैक्चर होगी 1400 डिवाइडेड बाई 18, ये आएगी 77 यूनिट। तो आपने थ्योरी ऑफ कांस्टेंट को यूज करके आपने क्या किया? जो बॉटलनेक एक्टिविटी थी उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया। क्योंकि अगर आप इस बॉटलनेक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई नहीं करते तो आप हो सकता है कि मशीन 1 और मशीन 3 से आप प्रोडक्शन कर लेते, लेकिन मशीन 2 के पास तो टाइम अवेलेबल नहीं है, तो वो अनप्रोसेस्ड मटेरियल पड़ा रहता है आपका। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ कांस्टेंट से था। इसके बाद इसकी और भी प्रॉब्लम हम करेंगे। थैंक यू।